Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Uh, Today we will be talking about what is content writing. Well, content writing is quite a bit important, and we need to understand it because it's the very fundamental requirement of today's business. आप जिस तरफ भी देखते हैं वेबसाइट्स है सोशल मीडिया हैंडल्स है जैसे फेसबुक है लिंक्डइन है इंस्टा ट्विटर and then companies have their own websites and nowadays it's the world of mobile applications like you might have used a number of mobile applications in your life. तो इस सब के लिए कंटेंट राइटिंग चाहिए होती है एंड दैट्स व्हाई दे कॉल कंटेंट राइटिंग एज द किंग. Well, content writing is the king, but first you need to understand like what content writing actually is. तो उसको समझने के लिए इंशाल्लाह आज ये सेशन हम करेंगे. But before I start talking about content writing, I'll try to introduce myself. Well, my name is Khairullah. I'm educationist, education consultant. I advise people, uh, and apart from that, uh, I'm a motivation speaker. I'm an IELTS and TOEFL trainer. I'm a writer myself. I write for magazines and newspapers around the world. So, but I believe that the future belongs to content writing because the world is getting digitized and the world is getting changed quite rapidly. बहुत तेजी से दुनिया बदल रही है, दुनिया ऑनलाइन हो रही है, एवरीथिंग इज गेटिंग ऑनलाइन. या इवन आजकल आप दुनिया में कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आप घर बैठे नहीं बुला सकते या नहीं मंगा सकते. फूड से लेके clothes and then toys for kids and then home appliances. You can everything, you can order everything while sitting at home. तो उसके लिए दो चीज़ें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक तो ये है दैट द डिजिटल वर्ल्ड मस्ट एग्जिस्ट. डिजिटल वर्ल्ड जब तक है ये सब कुछ पॉसिबल है. बट ये तो बिल्कुल बुनियादी है, ये आप यूं समझ लीजिए रूह है, द स्पिरिट ऑफ दिस न्यू वर्ल्ड, ऑफ दिस न्यू ट्रेंड, ऑफ दिस 21st century. लेकिन अगर आप बॉडी किसको कहेंगे, वेल दैट इज योर कंटेंट राइटिंग. कंटेंट राइटिंग के बगैर डिजिटाइज्ड वर्ल्ड कैन नेवर एग्जिस्ट और एटलीस्ट कैन नॉट सर्वाइव. तो बाकी दुनिया तो सब कर रही है, अगर आप नहीं कर रहे हैं, आप एक अच्छे कंटेंट राइटर नहीं है, आपका बिजनेस डजंट नो हाउ टू प्रोड्यूस क्वालिटी कंटेंट, तो फिर आपका बिजनेस नहीं एग्जिस्ट कर सकेगा, सर्वाइव नहीं कर सकेगा. तो इसलिए आज इंशाल्लाह हम ये सेशन करेंगे और ये सेशन आप एंड तक सुने और सुनने के बाद आई बिलीव एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट यू आर गोइंग टू गेट द बेसिक्स principles of content writing. You are going to answer a number of questions. What is content writing? What are its different types? What is SEO content writing? दूसरे इसके बारे में आप बहुत सारी चीज़ें जान सकेंगे. Now, top of the list is what is content writing? Well, content writing is actually writing for the web. इसमें अगर आप देख ले जो डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, इसमें content writing is the process of planning, writing, editing web content. Well, it comes in three phases. Phase first, you just need to plan it, the first initial draft, right? And then you are going to sit down and start writing. फिर आप उसको लिखते हैं, फिर आप उसको edit भी करते हैं because the web is going to exist for lifelong. जब तक दुनिया है तब तक वेब है, और इसलिए आपका जो आज का लिखा हुआ कुछ है, मे बी आफ्टर a year or 2 or 3 it won't be that effective. तो फिर आप उसमें changes ले आते हैं. That's why we say plan, write and edit. And you're writing for web, right? और ये अक्सर लिखा किस लिए जाता है? Well, it is written for marketing purposes. 90%. I'm not saying 100% content writing is done for marketing purposes. लेकिन इसमें जो 90% आप content writing करते हैं, ये आप marketing purposes के लिए करते हैं. To promote your business, to be able to generate more revenue, आप मज़ीद रेवेन्यू वहाँ से पैदा कर सके, आप मज़ीद क्लाइंट्स को बुला सके अपने साइट पे, अपने वेबसाइट पे, अपने पेज पे, और आप अपने जो बिजनेस है उसको बूस्ट अप कर सकें. सो now we have got two things. What is content writing? Well, it's plan,
write and edit first, right? And what is it used for? Well, it is used for marketing purposes. ये आप marketing purposes के लिए इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा जो है, it can include writing blog posts. Well, blogs भी हो सकते हैं. Now there is a question, what is a blog? ये इंशाल्लाह इस पे हम सेपरेट एक वीडियो करेंगे, उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि what is a blog. And articles and script for videos and podcasts. इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स है कंटेंट राइटिंग के. इंशाल्लाह उस सब पे हम वीडियोस अपलोड करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे, और उम्मीद है कि इससे आप बहुत मुस्तफ़ीद होंगे. एज वेल एज कंटेंट फॉर स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स सच एज ट्वीट स्टॉर्म्स ऑन ट्विटर और सोशल मीडिया मैनेजिंग. सोशल मीडिया मैनेजर्स भी आजकल एक जॉब है. या ट्विटर पे जो आप ट्वीट करते हैं या फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, दिस ऑल इज कंटेंट राइटिंग. अब इसको आप कैसे बेहतर कर सकते हैं? वेल, वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. उम्मीद है आपको कंटेंट राइटिंग की समझ आ गई है कि कंटेंट राइटिंग is fundamentally, it is writing itself, and it comes in three phases. First, you need to plan the initial draft. सबसे पहले आप एक ड्राफ्ट लिखते हैं, फिर आप सिट डाउन हो जाते हैं, फिर आप उसको लिखना शुरू हो जाते हैं, फिर उसको फाइनलाइज करना होता है, एडिट करना होता है, प्रूफ रीड करना होता है. प्रूफ रीडिंग आप किस तरह करेंगे, इंशाल्लाह इस पे भी हम आप तक पहुंचाएंगे. और एडिटिंग वेब कंटेंट आप एडिट भी करते हैं विद टाइम इंटरवल्स. और ये मार्केटिंग पर्पसेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. मुख्तलिफ़ किस्म के कंटेंट राइटिंग है, ब्लॉग पोस्ट्स है, आर्टिकल्स है, स्क्रिप्ट फॉर वीडियोस एंड पॉडकास्ट्स, और जो ट्विटर पे आप करते हैं, ये सारा हमारा कंटेंट राइटिंग हो जाता है. और बिलीव मी, इट इज़ द मोस्ट लुक्रेटिव बिजनेस इन द वर्ल्ड राइट नाउ. इसमें लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, और आप भी कमा सकते हैं, मैं भी कमा सकता हूँ, और घर बैठे हम कमा सकते हैं. यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर, और आप बहुत फ्री महसूस करते हैं. इस पे अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे अगर जाते हैं तो फिर वी गेट टू नो लाइक फर्स्ट स्टेप. इफ यू वांट टू बिकम अ कंटेंट राइटर, द फर्स्ट स्टेप यू नीड टू टेक इज क्रिएटिंग योर ओन पोर्टफोलियो. इसकी मैं एक एग्जांपल दूंगा. जैसे आप मॉडलिंग पे जाते हैं, तो मॉडलिंग में वो इससे पहले कि वो आपको कोई प्रोजेक्ट दे, कोई टास्क दे, वो आपसे सबसे पहले डिमांड करते हैं, शो मी योर पोर्टफोलियो. आप मुझे अपनी पोर्टफोलियो दिखाए, आप फोटोजेनिक है या नहीं है, आपकी तस्वीरें अच्छी आती है या नहीं आती. तो इसलिए कंटेंट राइटर का भी एक पोर्टफोलियो बनता है. आप ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स पे कुछ ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, कुछ वन लाइनर्स, कुछ कॉपी राइटिंग कुछ कर चुके होते हैं, जो आप अपने पास सेव रखते हैं. और कल को अगर कोई आपसे डिमांड करता है, देन आप उसको शो करते हैं कि ये मेरी राइटिंग है, आई एम एस्टेब्लिश्ड राइटर, और ये जो आपका प्रोजेक्ट है या जो आप मुझे गिग दे रहे हैं, आई एम अप फॉर इट, मैं इसको कर सकता हूँ. तो इसलिए सबसे पहले आप यू जस्ट चूज फ्यू टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट. जैसे फैशन है, टेक्नोलॉजी है, स्पोर्ट्स है, एंड देयर आर एक्चुअली मल्टीपल थिंग्स जिसको आप चूज कर सकते हैं. ट्रैवलिंग है, फूड है, इसको आप चूज करें, और इस पे दो दो तीन तीन आप अब अगर मैं ब्लॉग की बात करूं, तो ब्लॉग जो स्टैंडर्ड ब्लॉग है, इट इज़ अप टू 300 to 500 वर्ड्स. आप छोटे छोटे ब्लॉग्स इस पे लिखें, और उसको अपने पास रखें. कल को अगर आपको कहीं कोई गिग मिले, कोई प्रोजेक्ट मिले, तो आप उनको दिखाएं, सी आई एम अ राइटर एंड आई हैव सम एविडेंस फॉर इट. तो सबसे पहला स्टेप जो होता है, वो क्रिएट योर ओन पोर्टफोलियो. अब पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि जो टॉपिक्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं आप इसी पे लिखेंगे. वेल, आप मल्टीपल टॉपिक्स है, आप किसी पे भी लिख सकते हैं. सो आई सजेस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप. यू कैन स्टार्ट राइटिंग टुडे. आप छोटे मोटे टॉपिक्स पे 300, 400, 400 वर्ड्स, 500 वर्ड्स, 800 वर्ड्स पे आप लिखें. उसमें आप ग्राफिक्स को भी इंक्लूड कर दे, पिक्चर्स इंक्लूड कर सकते हैं, वीडियोस आप इंक्लूड कर सकते हैं. एंड यू कैन एक्चुअली क्रिएट योर ओन ब्लॉग राइट नाउ टुडे. जैसे आप फेसबुक अकाउंट बनाते हैं, उस तरह आप अपना एक ब्लॉग बनाएं, उसको एक अच्छा सा नाम दें. नाम को पे भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि आप ब्लॉग को क्या नाम दे सकते हैं जो अट्रैक्टिव हो, जो कैची हो, लोग उसको सब्सक्राइब करें. उसके बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह यू आर ऑन द राइट ट्रैक. एक बार आपका पोर्टफोलियो बन गया, देन फिर काम आसान हो जाता है. नेक्स्ट जो है, एज अ कंटेंट राइटर, व्हाट एक्चुअली यू नीड, इसमें आपको, अब आपने जब पोर्टफोलियो तो बना दिया,
अब ज़ाहिर है हर गली या हर घर में तो कोई आपको बंदा नहीं मिलेगा जो आपको प्रोजेक्ट दे या आपको बिजनेस दे। तो फिर आप क्या करते हैं, आप उसको पोस्ट करते हैं। जो आपका पोर्टफोलियो है उसको वाटर मार्क करके आप उसको पोस्ट करते हैं। लोग वहाँ पे आते हैं जिनको कंटेंट राइटर की ज़रूरत होती है। फिर वो आपकी राइटिंग को देखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आ, वो आपसे राब्ता करते हैं कि हमें आपकी राइटिंग बहुत पसंद आई, तो लिहाजा हमारा ये प्रोजेक्ट है, अगर आप ये कंप्लीट कर सकें हमारे लिए। तो वो जब आप काम उनको करके दे दें, आपको पे करते हैं। वो अब किस तरह पे करते हैं, कितना पे करते हैं, बेहतरीन पेमेंट क्या है, व्हाट इज़ द मोस्ट हैंडसम अमाउंट दैट यू कैन गेट, उस पर भी बात हो सकती है, बहुत तफसीलन बात हो सकती है। पेमेंट का तरीक़ाकार क्या होगा, इंशाल्लाह इस पे हम बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये है कि ये कुछ हमारे पास सोर्सेज है जहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो को वाटर मार्क करके पोस्ट कर सकते हैं। इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट मैं कहूँगा लिंक्डइन, वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल साइट। इस पे आप अपने पोर्टफोलियो को पोस्ट कर दें। अब आपने जब पोस्ट कर दिया, देन देयर इज अनदर स्टेप टू इट। आपके कंटेंट कॉन्टैक्ट्स में भी वो लोग होने चाहिए जो कंटेंट राइटिंग के रिलेटेड हो। फिर वहाँ से आपको प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, आपको काम मिल सकता है, वहाँ से आप पैसा बना सकते हैं। लिंक्डइन है, फेसबुक है। फेसबुक इज़ अ वेरी गुड सोर्स, बट ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आप तस्वीरें पोस्ट करने के लिए या वीडियोस पोस्ट करने के लिए यूज़ करें। वेल यू कैन यूज़ इट फॉर फॉर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़। फिर blogger.com है। अब blogger.com पे आप फेसबुक की तरह अकाउंट बनाते हैं। अभी आप जाएं वहाँ पे, आप अभी आप वहाँ पे एक अकाउंट बनाएं, वहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो पोस्ट करें। स्टार्ट राइटिंग टुडे, नेवर बी लेट। आप लेट ना हो। medium.com है, विच इज़ अ वेरी फाइन सोर्स। medium.com इज़ वेरी fantastic source and it's free of cost, it doesn't cost you anything। आप वहाँ पे अकाउंट बनाएं, अकाउंट बनाने के बाद आप वहाँ पे अपना पोर्टफोलियो पोस्ट करें, वहाँ पे आप पोस्ट करते रहें, तो फिर वहाँ से आपको लोग आते हैं। इट्स जस्ट लाइक डेटिंग साइट। वहाँ पे कंटेंट राइटर भी जाते हैं, वहाँ पे वो लोग भी आते हैं जिनको कंटेंट राइटर की ज़रूरत होती है, तो वो वहाँ पे तलाश करते हैं। आपकी राइटिंग उनको पसंद आती है, वो फ़ौरन आपसे कांटेक्ट करते हैं, आपको प्रोजेक्ट देते हैं, आप कंप्लीट करके वो आपको पे करते हैं। दूसरे सोशल मीडिया के भी बहुत सारे सोर्सेज है। upwork.com है, upwork.com, तो उस पर भी आप कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज you just need to create your own portfolio, right? The next one is post it to these sites: LinkedIn, Facebook, blogger.com, medium.com, upwork.com, और सोशल मीडिया हैंडल्स जितने भी है, किसी पे भी आप पोस्ट करें, वहाँ से आपको काम मिल सकता है। नेक्स्ट इज हाउ टू क्रिएट योर ओन ब्लॉग। कहाँ पे और कैसे? बहुत सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है। blogger.com, बहुत सिंपल एक स्टेप है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। डोंट गेट योर सेल्फ कन्फ्यूज्ड, जस्ट गो टू blogger.com। वहाँ पे आप अपना अकाउंट बनाएं, जैसे आप फेसबुक पे बनाते हैं। वहाँ फेसबुक पे आपको लाइक्स मिलते हैं और कमेंट्स लोग करते हैं, वहाँ पे भी आपको लोग लाइक और कमेंट करते हैं blogger.com पे, बट उनका पर्पस अलग होता है। उनका पर्पस ये होता है कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है। अब आपका जितना ज़्यादा मतलब रिएक्शंस आपके ब्लॉग जनरेट करे, उतना ही आप मुफीद राइटर हैं और उतना ही ज़्यादा आपको काम वहाँ से मिल सकता है। वर्डप्रेस.com जो है ये पेड है, इसको आपको 2-3-4 हज़ार रुपये पे करना पड़ेगा इनिशियली, बट इट इज़ वेरी फाइन, इट्स वेरी इफेक्टिव। फिर मीडियम.com है। इसके अलावा आपका upwork.com है। ये जो जितने भी साइट्स हैं, इस पे आप जाएं, यहाँ पे आप अपना ब्लॉग अकाउंट बनाएं, वहाँ पे आप अपना जो पोर्टफोलियो है उसको पोस्ट कर दें, और पोस्ट करने के बाद ये आप उम्मीद रखें कि वहाँ पे रिएक्शन भी आएगा, कमेंट्स भी होंगे, लाइक्स भी होंगी, और फिर वहाँ पे लोग आएंगे, उसको पढ़ेंगे, वो आपको काम देंगे, जिनको कंटेंट राइटर चाहिए होता है। एंड आप ये ना समझे, कंटेंट राइटर इज हाईली इन डिमांड दिस डेज, बहुत ज़्यादा डिमांड में। कोविड-19 ने तो बिल्कुल सिचुएशन को ही चेंज कर दिया। Everything is going online, everything has got digitized, the world itself has got digitized, दुनिया डिजिटाइज्ड हो चुकी है, सब कुछ ऑनलाइन है। तो आपको बहुत ज़्यादा काम मिल सकता है, और इसके लिए बिलीव में आपको बहुत बेहतरीन राइटर नहीं होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक एकेडमिक राइटिंग। ये नहीं है कि आप बुक की तरह राइटिंग करेंगे जैसे बुक्स लिखी होती है, या आप न्यूज़पेपर्स में जो हाई स्टैंडर्ड्स की राइटिंग होती है।
उस लेवल की भी आपको राइटिंग नहीं चाहिए. इट्स जस्ट लाइक यू नीड टू नो हाउ टू जनरेट रिएक्शंस. You might be funny, you might be comic. आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शंस जनरेट कर रहे हैं. अब रिएक्शन से मुराद है इफ़ योर पोस्ट गेट शेयर्ड मल्टीपल टाइम्स, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स, कमेंट्स उस पर आते हैं, उस पर रिएक्शंस आते हैं, तो इट मीन्स यू आर अ वेरी फाइन राइटर. ये जो कंटेंट राइटिंग है, यहाँ पे आप इस बुनियाद पे जज नहीं किए जाते कि आप कितने इम्प्रेसिव राइटर हैं, यहाँ कितना आप ग्रामर या बिग वर्ड्स आप यूज़ करते हैं. यहाँ पे आपके रिएक्शंस जो है, इट टेल्स द होल स्टोरी. ये सारी कहानी बता देते हैं कि आप कितने मुफीद राइटर हैं. अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शंस जनरेट कर सकते हैं, इट मीन्स दैट यू आर द बेस्ट राइटर इन द वर्ल्ड, और आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं. और ये मुमकिन है कि आपको अच्छा लिखना भी नहीं आता होगा. सो जस्ट गो देयर, क्रिएट योर ओन ब्लॉग, और इंशाल्लाह फिर आपको इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है. बहुत ज़्यादा आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं. और अगर आप it's also like a business, not just a job. ये नहीं है कि just get gigs or projects. आप इसको एज अ बिजनेस भी ले सकते हैं, और उसका भी एक तरीक़ाकार इंशाल्लाह उस पर हम कमिंग वीडियोस में बात करेंगे कि आप एज अ ब्लॉगर बिजनेसमैन कैसे हो सकते हैं. Well, we are going to talk on it some other day, but today we are just going to talk about the fundamental principles of content writing. आपको सिर्फ समझ आ जाए कि content writing है क्या. Next is फिर आपने खुद को आइडेंटिफाई करना होता है. आइडेंटिफाइंग योर सेल्फ एज अ राइटर, राइट. अगर आप फुटबॉलर हैं, इफ़ यू प्ले सॉकर, तो फिर उसमें आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हैं. आप स्कोरर है, आप मिडफील्डर है, आप जो डिफेंस पे होते हैं आप वो है, या आप गोल कीपर है. हु यू आर. सो एज अ राइटर यू नीड टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ. आपको पता होना चाहिए कि आप किस किस्म की राइटिंग कर सकते हैं. अब मुख्तलिफ किस्म की राइटिंग है. ब्लॉग्स भी लोग लिखते हैं, वेब पेजेस भी लोग उस पर भी काम करते हैं, बिजनेस प्रपोजल्स भी आप लिखते हैं, आर्टिकल्स भी आप लिखते हैं, कॉपी राइटिंग भी आप करते हैं. अब मैं आपको कॉपी राइटिंग की मिसाल बताता हूँ. कॉपी राइटिंग इसको वन लाइनर भी कहते हैं. मोस्टली इट्स प्रोमो राइटिंग. प्रोमो राइटिंग, कॉपी राइटिंग, इट्स लाइक not the same exactly, but somehow it is the same thing. कॉपी राइटिंग में आप क्या करते हैं, आप बिल बोर्ड्स देखते हैं, जब आप सफ़र करते हैं रोड्स पे बैनर्स भी लगे होते हैं, एडवर्टीजमेंट्स भी हो सकते हैं, ब्रोशोर्स भी हो सकते हैं, वो कॉपी राइटिंग है. अब वेब पेज, जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे आपको मुख्तलिफ पेजेस मिल जाती है, उसको हम कहते हैं वेब पेजेस. तो सबसे पहला काम आपने अपने आप को आइडेंटिफाई करना है. यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ दैट हु यू आर एज अ राइटर. एज अ राइटर आप कौन है, आप क्या लिख सकते हैं. और बिलीव मी, ये किसी हद तक इट्स व्हाट दे कॉल इट इननेट टैलेंट. ये आप पैदाइशी कुछ लोगों को अल्लाह ने सलाहियत दी होती है. कुछ लोग ट्रेंड हो जाते हैं by reading, by having interest, and by being passionate about something. आप पैशन रखते हैं किसी चीज़ के हवाले से, और फिर वो करते करते आप उसको कमाल दर्जे पे किसी दिन किसी वक्त पहुंचा देते हैं. सो आइडेंटिफाई योर सेल्फ. ट्राई, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. सो द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम. तो आपसे द नेक्स्ट थिंग, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ. एंड देन द की रिक्वायरमेंट्स. अब अगर आप कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं या होना चाहते हैं, तो फिर आपके की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन सी चीज़ें आपको आनी चाहिए. वेल, देयर आर जस्ट टू थिंग्स. सम सॉर्ट ऑफ फैमिलियरिटी विद कंप्यूटर. मैं ये नहीं कह रहा कि यू आर गोइंग टू बी द मास्टर ऑफ द बिजनेस, सो व्हाट दे कॉल इट. यू जस्ट नीड टू नो अबाउट द वर्ड फैमिली. आपको वर्ड फैमिली जो है, पावर पॉइंट है, या एक्सेल है, या वर्ड इटसेल्फ, ये आनी चाहिए आपको. अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में किसी हद तक अगर आपको कुछ चीज़ें उसमें आती है, अडोब है या दूसरे, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक होगा. यू डोंट नीड ग्राफिक डिज़ाइनर एवरी टाइम. लेकिन आजकल हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन है दैट हेल्प्स यू. तो आपको कंप्यूटर का कुछ ना कुछ, यू मस्ट बी. I don't use must. You should, right? Must is a greater, more strong category. So you just need to be good at computer.
good at. And if you are not good at, if you don't know about anything about computer, that's all right. अभी भी आप कंटेंट राइटर हो सकते हैं. इफ यू नो सम सॉर्ट ऑफ अ ग्रामर, आपके पास कुछ ग्रामर होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, आपके पास न्यू आइडियाज होनी चाहिए, आपके पास अट्रैक्टिव राइटिंग स्टाइल होना चाहिए, और दैट्स ऑल यू नीड टू नो. और ये कुछ भी ना हो, स्टिल यू कैन बी अ कंटेंट राइटर, एंड नॉट जस्ट अ कंटेंट राइटर, द मोस्ट हैंडसमली पेड कंटेंट राइटर, हाईली इन डिमांड कंटेंट राइटर. तो आप हो सकते हैं. इफ यू, मैंने आपसे पहले भी कहा कि कंटेंट राइटर, अगर आपसे कोई पूछे कि हु इज द मोस्ट or the best content writer, your answer must be a person whose writing generates more reactions. जिसके सबसे ज्यादा रिएक्शन जिसके राइटिंग पे आती है. अब उसकी राइटिंग बिल्कुल गलत भी हो सकती है, फिर भी वो रिएक्शंस क्रिएट करेगा. रिएक्शन मीन्स कमेंट्स, शेयरिंग उसकी अच्छी हो, लोग उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, लोग उसको लाइक करे. तो ये इट मीन्स यू आर अ वंडरफुल कंटेंट राइटर. बट फिर भी मैं कहूँगा कि यू नो सम हाउ यू नीड टू हैव सम कंप्यूटर स्किल्स, वर्ड फैमिली, if you know something about graphic designing, and then grammar and some sort of a content आपके पास होना चाहिए, आपके माइंड में आइडियाज होने चाहिए, और उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने का आपके पास एक अंदाज होना चाहिए, जिस पे लोग जैसे आप टिकटॉक पे बहुत सारे लोग वीडियोस अपलोड करते हैं, कुछ लोग बहुत मयारी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, बट उनका उतना फैन फॉलोअर नहीं है, उन पे रिएक्शन नहीं आता, तो हम समझते हैं कि नो दैट्स दे आर नॉट गुड. कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सब स्टैंडर्ड्स वीडियोस अपलोड कर लेते हैं, बट दे गेट अ ह्यूज अपलॉज, अ ह्यूज रिएक्शन फ्रॉम द ऑडियंस. सो दैट्स यू नो द सेम फॉर कंटेंट राइटिंग. तो आप अगर कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं, और आपको ज़रूर बनना चाहिए, बिकॉज द फ्यूचर बिलोंग्स टू इट, बिलीव मी, द फ्यूचर बिलोंग्स टू इट. You need to be a wonderful, tremendous, outstandingly fantastic content writer. और ये वक्त के साथ फिर आप सीख जाते हैं. सो नेक्स्ट ये है कि ये जॉब चैलेंजिंग भी है. वेल, देयर इज अ डाउन साइड टू इट, देयर इज अ पॉजिटिव साइड टू इट, देयर इज अ डाउन साइड टू इट एज वेल. चैलेंजिंग ये है कि देयर आर 1.9 बिलियन वेबसाइट्स, 1.9 billion websites. It means that there is a website for every third person. हर तीसरे शख्स के लिए एक वेबसाइट एग्जिस्ट कर रहा है. तो इतने 1.9 मिलियन बिलियन वेबसाइट्स में से आप अपनी जगह कैसे बनाएंगे? वेल, दैट इज अ चैलेंज, बट यू कैन. क्योंकि बाकी जो कर रहे हैं वो भी तो इंसान ही है हमारी तरह, और आप भी एक अच्छी इंसान है. गो फॉर इट. एंड देन थ्री, लेकिन देयर इज अ पॉजिटिव साइड टू इट. 3.5 बिलियन गूगल सर्चेस एवरी डे. कितने लोग गूगल सर्च करते हैं इन अ डे? 3.5 बिलियन. अब अगर आप इसका एवरेज ले लें, इसका मतलब ये है कि हर दूसरा शख्स दिन में एक बार वो क्या गूगल पे आता है. सो 3.5 बिलियन में से अगर आप 100, जस्ट 100 लोगों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें, रीडर्स को, क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को, पासर्स बाई को, तो ये मैं समझता हूँ आपकी जीत है. Just 100 out of 3.5 billion. So it's a small chunk. और मैं उम्मीद करता हूँ आप ये कर सकते हैं. लेकिन इसमें एक मसला ये है कि एक रिसर्च है जो कहता है कि 55% विजिटर्स जो होते हैं, जो सर्च करते हैं, दे स्पेंड 15 और लेस देन 15 seconds ऑन योर वेब पेज. तो फिर इसमें मसला ये आ जाता है कि गूगल फिर समझता है कि आपका जो कंटेंट है, इट इज सब स्टैंडर्ड, इट इज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड, इट इज नॉट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल हु आर गोइंग फॉर द सर्च. जो लोग सर्च कर रहे हैं उनकी ज़रूरत के मुताबिक आपकी कंटेंट राइटिंग नहीं है. तो गूगल क्या करता है, वो फिर नेक्स्ट टाइम अगर कोई उस हवाले से सर्च करेगा तो वो आपको दिखाता ही नहीं है रिजल्ट में. सो यू जस्ट हैव टू प्रोड्यूस quality 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 content. And again, I would explain that quality means a sort of content that produces more reactions and more reactions and more reactions. तो इस पे आप काम करें, इंशाल्लाह आप बेहतर कर सकते हैं. एंड देन
What is keywords? Well, keywords बहुत important है, बहुत important है. Keywords, अगर आप इसकी definition को देखें, your CEO keywords are the keywords and phrases in your web content that make it possible for people to find your site via search engines. Keywords जो है, आप यूं समझ लीजिए कि it is the language of the customers, of the clients, of the people who are making these searches. मतलब वो जो, अब फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो आपने वहां पे कुछ टाइप तो करना होता है ना, राइट? तो वो जो टाइप आप कर रहे होते हैं, एक्चुअली दीज आर कीवर्ड्स. अब फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा पाकिस्तान के हवाले से सर्च कर रहा है, यूरोप में बैठा है, वो पाकिस्तान के बारे में जानना चाह रहा है, तो वो गूगल में क्या लिखेगा? what is the possible language that he will use? तो वो जो उसकी लैंग्वेज है जो वो यूज करेगा, वो हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं. अब आपके राइटिंग में जितने ज्यादा आप कीवर्ड्स यूज करते हैं और उनको ठीक पोजीशन और लोकेशन पे अपनी राइटिंग में रखते हैं, तो फिर वो ज्यादा अट्रैक्टिव होता है. गूगल हर बार आपको दिखाएगा अगर आपका कीवर्ड्स ठीक है. अब आपको कैसे पता चलेगा कि किस टॉपिक के लिए कीवर्ड्स कौन से हैं? उसके लिए भी एक हमारे पास टूल्स है, जिसको आप यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस टॉपिक के हवाले से कीवर्ड्स कौन से हैं. सो कीवर्ड्स fundamentally it is the language of the readers, of the customers, of the clients, of the people who are making these searches. मतलब जो लोग गूगल में टाइप कर रहे हैं एक खास टॉपिक को सर्च करते वक्त, वही उसके कीवर्ड्स है. मगर इसमें अब चैलेंज ये आ जाता है कि मुझे क्या पता कि पाकिस्तान को जब लोग सर्च करते हैं तो वो गूगल में क्या लिखते हैं. तो फिर इसके लिए हमारे पास कॉम्पिटिटिव टूल्स है, जिसको हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस टूल्स, जिसको आप सर्च भी कर सकते हैं कि कौन कौन से हैं. उसको आप एक पाकिस्तान वहाँ पे लिखेंगे, वो आपको नीचे लिस्ट दे देगा कि अच्छा पाकिस्तान को जब लोग सर्च करते हैं तो मोस्टली वो ये वर्ड्स गूगल में लिखते हैं. अब वो जब आपको कीवर्ड्स का पता चला कि अच्छा पाकिस्तान के हवाले से ये कीवर्ड्स है, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर वही आप उसको राइटिंग में यूज़ करते हैं ताकि गूगल फिर आपको शो करे एज अ रिजल्ट. A website that is well optimized for search engines speaks the same language as its potential visitor, based with keywords for SEO that help connect people to your sites. So the thing is clear. Keywords is actually the language of your customer. It is actually the language of potential visitors. जो विजिटर्स है उनकी लैंग्वेज है, और उनको निकालने के लिए, उनको समझने के लिए कि किस टॉपिक के हवाले से कीवर्ड्स कौन से हैं, वेल यू हैव कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस टूल्स. उसको आप सर्च करें, वो आपको कीवर्ड्स बता देगा. कीवर्ड्स आपने जब आपको पहचान में आ गए, समझ में आ गए, आपने अपने पास लिख लिए कि अच्छा पाकिस्तान को जब लोग सर्च करते हैं तो ये वर्ड्स यूज़ करते हैं. अब इन वर्ड्स को मैंने अपने राइटिंग में यूज़ करना है. द थिंग इज़ कि कितनी बार यूज़ करना है उन वर्ड्स को आपने अपनी राइटिंग में, और कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है. इंशाल्लाह इस पे भी हम एक सेपरेट वीडियो करेंगे व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट SEO कीवर्ड्स. तो फिर इंशाल्लाह उससे आपको भी फ़ायदा होगा, हम सबको भी फ़ायदा होगा. और उसके लिए आप ज़रा सा इंतज़ार कीजिए. इंशाल्लाह द नेक्स्ट टाइम अराउंड आई विल कम अप विद SEO और CO कीवर्ड्स, CO कंटेंट राइटिंग. उसमें इंशाल्लाह आपको इसकी बेहतर समझ आ जाएगी. द नेक्स्ट थिंग इज़, यहाँ पे मैंने दिया भी है, द 9 बेस्ट फ्री कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस टूल्स इन 2020. नाउ वी आर इन 22. तो उसमें क्रंच बेस है, Ovler है, you have Talkwalker, and then Visual Pin, and SimilarWeb, and Spyfu, Moat, and Google Alerts. Google Alerts is, I think, the best, and it's the most easy to use. Easy to use, and I think it is wonderfully fantastic to find about keywords about a certain topic. And once you found the keywords, then now it's all up to you to use it the right way. The right way कौन सा है? Inshallah, we will be talking about it. फिलहाल you just need to understand this. And then plagiarism जो है, इससे आपने बचना है. इससे आपने बचना है. आप एक जो
तस्वीर आप कॉपीराइटेड, अगर आप एक पिक्चर भी कहीं से ले लेते हैं, एक इमेज को भी कहीं से ले लेते हैं और उसको आप अपने राइटिंग में इंक्लूड करते हैं, या कुछ वर्ड्स आप ले लेते हैं, या कुछ आप मतलब कुछ सेंटेंसेस आप कहीं से कॉपी किया और अपने राइटिंग में आपने लिख दिया और फिर उसको आपने ऑनलाइन पोस्ट कर दिया और आप ये समझ बैठे हैं कि इसका कोई नुकसान नहीं है, वेल फॉर मी it is murder for your content writing, and for you as a content writer आप फौत हो जाते हैं, क्योंकि गूगल बहुत जल्दी, गूगल algorithms इट वर्क्स इन अ फंटास्टिक वे, इन अ फंटास्टिक मैनर। उनको फौरन समझ आ जाती है कि ये जो है राइटिंग, ये कॉपीड है, ये ओरिजिनल नहीं है, ये प्लेजराइज्ड राइटिंग है। तो आपने प्लेजरिज्म से बचना है, और प्लेजरिज्म को आप जब एक बार आपने लिखा तो देन यू कैन plagiarism या grammarly.com, it helps you to find out mistakes, it helps you to find out grammatical errors in your writing. copyscape.com ये कुछ फ्री है, किसी हद तक फ्री है, उसके बाद फिर आपको पे करना पड़ता है। लेकिन copyscape.com जो है, इस पे आप अपने राइटिंग को रन करते हैं और रन करने के बाद वो आपको बता देता है कि आपकी राइटिंग में किस हद तक कॉपीड मटेरियल है, किस हद तक आपकी जो राइटिंग है ये प्लेजराइज्ड है। सो यू आर एडवाइज टू अवॉइड प्लेजरिज्म और कॉपीड मटेरियल। आप कॉपीड मटेरियल को अवॉइड करें एंड फिर आप एक बेहतरीन, वंडरफुल, फैंटास्टिक कंटेंट राइटर बन सकते हैं। अब अगर एसईओ की हम बात करें, एक शॉर्ट्स बात हम इस पे करेंगे, इस पे हम पूरा एक लेक्चर देंगे। देन इसमें कुछ चीज़ों, हमारा मतलब कुछ चीज़ें होती है, कीवर्ड्स है, स्ट्रक्चर है, कीवर्ड्स, मैंने इसको कुछ ना कुछ एक्सप्लेन किया, कुछ ना कुछ। एंड देन स्ट्रक्चर, आपकी राइटिंग की खास स्ट्रक्चर होनी चाहिए, चाहे आप जिस किस्म के भी राइटर हैं, कॉपी राइटर है, बिजनेस प्रपोजल आप लिखते हैं, आप ब्लॉग्स लिखते हैं, आप आर्टिकल्स लिखते हैं, आप वेब पेजेस लिखते हैं, बट यू जस्ट हैव टू केयर फॉर द स्ट्रक्चर। लिंकेज, बैक लिंक्स एंड हाइपर लिंक्स, वो आप क्रिएट करेंगे। कंटेंट को फ्रेश होना चाहिए, कॉपीड नहीं होना चाहिए। इट मस्ट हैव अ वेरी फाइन हुक। हुक क्या है, इंशाल्लाह वी विल एक्सप्लेन इट व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट सीईओ। एंड देन द टाइटल, टाइटल मैटर्स। मैं एक चीज़ बताता हूँ कि आपका जो टाइटल है, इट मस्ट नॉट बी मोर देन 72 लेटर्स। 72 लेटर्स ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या इसको अट्रैक्टिव आप इसको किस तरह बनाएंगे, इस पे भी इंशाल्लाह हमारी बात होगी। बट अगर आप SEO बेस्ड राइटिंग करते हैं, इफ़ यू आर राइटिंग फॉर द वेब, तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि आपकी राइटिंग जो है, it is according to the standard of search engine optimization. If it is not, then it won't attract people. It won't um, it won't woo Google. ये गूगल को वू नहीं करेगा, उसको फ्लर्ट नहीं करेगा। एंड एज अ राइटर यू नीड टू फ्लर्ट गूगल। आपने गूगल के साथ फ्लर्ट करना होता है, गूगल को बुलाना होता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी इस टॉपिक के हवाले से कोई सर्च करे तो आप मेरी राइटिंग दिखाएं। और साथ में अपने कस्टमर्स को भी इनवाइट करना होता है, पोटेंशियल विजिटर्स को भी इनवाइट करना होता है, रीडर्स को भी इनवाइट करना होता है, क्लाइंट्स को भी इनवाइट करना होता है। सो फॉर यू इट इज़ इम्पॉर्टेंट to understand Google algorithms and how it works. What is search engine optimization? इस पे इंशाल्लाह हम तफसील से बात करेंगे। For the time being, well, it is important for you as a content writer to know something about SEO. Well, that's all from me for today. May God bless you. Have a wonderful time. और उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको नहीं आई है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट इट्स रियली रियली गोइंग टू हेल्प यू। ये आपको हेल्प ज़रूर करेगी, ये जो कोर्स है। अगर आप कंटेंट राइटिंग, और आपको ज़रूर कंटेंट राइटर होना चाहिए, कम से कम आपको बेसिक नो हाउ होना चाहिए, बिकॉज आई बिलीव दैट अ टाइम इज़ going to come when everything will get digitized. Everything, it will be all about content writing. It will be all about virtual world. जो एक ऑनलाइन दुनिया बनती जा रही है, दुनिया उस तरफ जा रही है, तो हमें उस तरफ जाना बहुत ज़रूरी है। इसकी मिसाल मैं दूंगा, हमारे पास बहुत सारे कंपनीज थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो अब सलीट हो चुकी है। कभी वो बहुत अरूज पर थी, लेकिन अभी उनका कोई फ़ायदा, कोई काम नहीं है। वो इसलिए है कि उन्होंने खुद को वक्त के साथ अपडेट नहीं किया। सो इफ़ यू आर
एजुकेटेड। एजुकेटेड से मुराद ये है कि आपने एफ ए किया है, एफ एस सी किया है, बी ए बी एस सी हैं, आप डॉक्टर हैं, आप साइकोलॉजिस्ट है, आप एजुकेशनिस्ट है, आप टीचर है, आप ट्रेनर है। आपको आपके लिए कंटेंट राइटिंग का समझना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू बी गुड at your business. So thank you so much. God bless you. I hope I conveyed whatever I had about content writing. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इस पे किसी एक और टॉपिक के साथ हम आगे आएंगे और इंशाल्लाह ये सारे टॉपिक्स को हम मज़ीद डिटेल में लेके जाएंगे ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए. That's all from me. Thank you so much. God bless you. Have a wonderful time.